Hello students, today we'll talk about the Nernst equation. You know students, the Nernst equation actually it gives the electrode potential of any electrode. So just before moving into the Nernst equation class, I just want to clear one thing. Nernst equation actually it gives the electrode potential, but we know as we have already talked about the electrochemical series in the previous class, if you remember, वो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी इट वाज गिविंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. डू यू रिमेंबर? इट वाज द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एक होता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which is represented by E naught, and you know standard electrode potential means the electrode potential at the standard condition. What? The standard electrode potential is actually the electrode potential at the standard condition. Standard condition of what kind of a standard condition? Standard condition means the temperature standard, standard condition, normal condition, STP. So the same thing. Standard condition means the electrode potential of the different electrode at the temperature of 298 Kelvin, and the concentration of the electrode solution should be 1 mole per liter. Do you know? Suppose this is a solution, okay, container, and it is having an electrode in it. So suppose, so this solution should be having 1 m molarity. 1 m molarity means इसका जो solution है हमारा, this solution is having the concentration equal to 1 mole per liters. Our molarity is 1 m. So the standard condition is the temperature is 298 Kelvin, and the solution concentration is 1 molarity, 1 mole per liter. And if the electrode is consisting of the gas, you know, do you remember hydrogen electrode, standard hydrogen electrode? So at that case we'll have to consider the pressure which is equal to 1 bar. So these are the standard condition. So अगर इन सारी conditions को अगर pressure को हम निकाल दें, ये तो सिर्फ gases के लिए applicable है. अगर हम इनको निकाल दें, ओके, इनको निकाल दिया हमने, गैस को निकाला, लेकिन अगर हम टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन की स्टैंडर्ड कंडीशन रखें, आर यू गेटिंग मी, और फिर जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का पता करेंगे, दैट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. बट यू नो नर्स ने क्या इक्वेशन दी थी? नर्स ने कहा था कि वी कैन ओनली कैलकुलेट द ई नॉट और द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. But if you really want to calculate, if you want to find out the electrode potential of any electrode at any condition, not only the standard condition, मतलब किसी भी टेम्परेचर पर, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पर, और अगर वो इलेक्ट्रोड हमारा गैस का बना हुआ है, सो इट मीन्स किसी भी प्रेशर पर. सो किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी कंडीशन पे अगर हम निकालेंगे, तो उसके लिए नर्स्ट गेव अ पर्टिकुलर इक्वेशन. आर यू गेटिंग मी? एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल which is given in the electrochemical series. The other one is electrode potential at any condition. Standard electrode potential means standard condition, and electrode potential means जो नर्स ने दिया था at any condition of temperature, concentration and pressure. तो यहाँ पर इन्होंने ये हमारे नर्स ने इक्वेशन दी. ये जो नर्स इक्वेशन है, it is E is what? E is the electrode potential. E is electrode potential. It is electrode potential. Okay, as I told you, E naught is what? It is the electrode potential at the standard condition. It means standard electrode potential. Standard electrode potential हम यहाँ लगाएंगे, जैसे जिसका भी हमें निकालना है उसका standard electrode potential यहाँ लगाएंगे, electrode potential हम इससे निकाल लेंगे फॉर्मूले से. So the formula is E, मतलब electrode potential is equal to standard electrode potential minus 2.303 RT divided by NF log concentration of product divided by concentration of reactant. Now class listen, R is what? R is the gas constant. Here R is the gas constant. T is the temperature. Okay, T is the temperature. N is the number of electrons. You know, in what happens at the electrode,
आइदर द इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट, और इलेक्ट्रॉन को या तो गेन किया जाता है, लॉस्ट की लूज किया जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं? सो एक्चुअली दिस एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो हमें लूज करेंगे या गेन करेंगे। You know class, this f is actually the Faraday constant, and in the next coming session, coming lecture, I will definitely talk about the Faraday's constant. अभी हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में Faraday constant हम डिस्कस करेंगे। वैल्यू ऑफ Faraday constant is 96500 approximately. It is the charge. So Coulomb, 96500 Coulomb, it is the value of Faraday's constant. Log P, P is what? It is the concentration of product divided by concentration of reactant. सारी चीज़ अभी बताता हूँ, इनके सबके मीनिंग क्या है। देखो यहाँ पे ये हमारे जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, एज आई टोल्ड यू इन माई प्रीवियस क्लास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स वील हैव टू टेक द रिडक्शनल पोटेंशियल। डू यू रिमेंबर? नो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वील हैव टू कंसिडर ओनली द रिडक्शनल पोटेंशियल. What? Reductional potential. रिडक्शन पोटेंशियल. तो यहाँ पे मैंने एक मेटल ले ली सपोज, एंड दिस मेटल इज हैविंग n प्लस चार्ज. इसने n इलेक्ट्रॉन गेन किए, क्योंकि रिड्यूस होगा तभी हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे. इसने n e प्लस इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए, और इन दिस वे इट इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड. ओके, ये मेटल n प्लस था, ये रिड्यूस हो गया. समझ आया सबके? अब यहाँ देखो इसने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो ये यहाँ पे नंबर ऑफ n इलेक्ट्रॉन्स आ गए. ये गैस कांस्टेंट हो गई, ये टेम्परेचर हो गया. अब यहाँ पर जो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये एक इक्वेशन बना ली मैंने, एक रिडक्शन की इक्वेशन बना ली. आर यू गेटिंग मी? एंड दिस इक्वेशन इज गिविंग द रिडक्शन. So now P is what? P would be the concentration of this M metal after getting the electron. ये इसकी concentration है. And R is what? The concentration of reactant. तो ये इसकी होगी concentration. Are you getting me? Very simple thing. सब चीज़ें बहुत simple हैं. यहाँ पे जो R की वैल्यू है, as it is the gas constant, it is 8.314 joule per Kelvin per mole. NT is the temperature. अगर हम इन सब की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दें, आर यू गेटिंग मी? सारी इसकी वैल्यू जो थी सब लिख दी इन्होंने, नर्स ने सबको लिख लिया, और एक इन्होंने कंडीशन ले ली, टेम्परेचर को इन्होंने रखा 298. ज़्यादातर जितने भी केसेस होंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हमारे आइदर दे हैव बीन आस्क्ड इन द वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक नीट एंड IIT मेंस, उसमें भी और जो हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं, सब में टेम्परेचर 298 ही रखते हैं. स्टैंडर्ड हमारा जो है मेन टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही लेते हैं. द थिंग इज, यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज को देखकर ही निकालेंगे सिर्फ. आर यू गेटिंग मी? मैंने बताया ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट एनी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन. तो टेम्परेचर को हमने मेन नॉर्मल रखा है, बट हम जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे, उसमें चेंजेस. सो हम चेंजेस जो हैं सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के रिगार्डिंग ले रहे हैं. अगर हम इन सारी चीज़ों को इसमें पुट कर दें, सो E इज इक्वल टू, मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E नॉट, सबकी वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ. टेम्परेचर आई एम राइटिंग हियर 298 केल्विन. ओके, Faraday's value, Faraday's constant is 96500 coulomb. Okay, so it will become E naught 2.303, सबकी वैल्यू रख दी 8.314 into 298 divided by n, मैंने वैसे ही रखा है, number of moles of electrons 96500, and this becomes log concentration of product divided by concentration of reactant. Okay, अब मैं इसको यहाँ ले लेता हूँ. So E electrode potential will become E naught माइनस, अगर इन सब की कैलकुलेशन करें, सो वील गेट 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग. अगर मैं इसको कंसिडर करूं यहाँ पर, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इज दिस m सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस आई मीन दिस इज द प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. सो रिएक्टेंट इज दिस, it is mn
Okay, concentration of this. Now class, you know the solid state, it is in solid condition na. Solid state, solid electrode is having the concentration equal to 1. Okay, so the formula will become E is equal to E naught minus 0.059 divided by n log 1 by concentration of reactant. So this reaction, I mean this equation, it is for the हाफ इलेक्ट्रोड. आई मीन एक हम सेल बनाते हैं ना, उसमें जो रिडक्शन सेल होता है, एक ऑक्सीडेशन सेल होता है, तो उसके लिए ये एक हमारी इक्वेशन आई, नर्स्ट इक्वेशन. आर यू गेटिंग मी? इट वाज वेरी सिंपल, सारी चीज़ें बहुत सिंपल थी. एक इक्वेशन दी है उन्होंने, हमने उनकी सारी वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पर जो मैंने लिखा है ना 0.059 डिवाइड बाई एन, सो यू कैन टेक 0.06. ओके, 0.06 लेकर भी करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो करेक्ट आएगा. अब मैं now I'll take some examples of numerical. okay, उससे पिक्चर और क्लियर हो जाएगी. क्लास, लिसन क्लास, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, उसी इक्वेशन को, फॉर्मूले को हम बेस मान के इसको करेंगे. दे आर आस्किंग कैलकुलेट E. E is what? Electrode potential when copper rod is dipped or immersed or merged. Copper rod is merged into 0.8 m solution of copper sulfate, and the question is also giving the standard electrode potential of copper. It is given 0.34 volt. Are you getting me? Question is clear to all of you? अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, वही फॉर्मूला लगाते हैं. E इज इक्वल टू, ये हमें पता करना है ना, E नॉट इज गिवन माइनस, मैं यहाँ पे 0.06 ले रहा हूँ, 0.059 था ना, डिवाइड बाई एन log concentration of product divided by concentration of reactant. Okay, now listen class, E naught is given. Okay, it is the value which is given in the question. n हमें पता करना है, और ये concentration जो है हमारा, concentration का भी इक्वेशन के बाद सब क्लियर हो जाएगा. देखो हो क्या रहा है, मेन चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ ना उसको देखने की कोशिश करना. ये कॉपर है, हमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द, अगेन आई एम टेलिंग यू, इट इज़ reductional electrode potential. It is reductional electrode potential. All the time we'll have to consider only the reductional electrode potential. So copper, reduce करा उसको, copper 2 plus, it will take 2 electron. The equation would be copper solid. Clear class? It will become copper solid. After taking electrons it will become copper solid. Now कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन वाज गेन बाय द कॉपर 2 प्लस आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स. सो एन की वैल्यू हो गई 2. आर यू गेटिंग मी? अब हम इन चीज़ों को इसमें पुट करते हैं. सो ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हम वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन 0.34 वोल्ट माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 लॉग, यहाँ देखो प्रोडक्ट इज व्हाट, कॉपर, सो कॉपर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट इज कॉपर आयन, Cu2 प्लस. इज इट क्लियर क्लास? समझ आ गया सबके? नाउ लिसन, E इज इक्वल टू 0.34, अगर हम इससे इसको डिवाइड करेंगे वील गेट 0.03 लॉग, यहाँ पर क्योंकि कॉपर सॉलिड में है सो द कॉन्सेंट्रेशन वुड बी 1 divided by the concentration of copper is given. देखो यहाँ पर copper sulfate solution is given, it is 0.8, so we'll have to write here 0.8, यहाँ से 0 लगाकर 0. ओके, समझ आया? अब देखो लिसन, log 10/8 means what, ये हो गया log 10 minus log 8, and we know इसको log 10 की वैल्यू इज 1 minus वैल्यू ऑफ log 8 is 0.9, so it comes out to be what, 0.1. are you getting me? so हम ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं. so E naught will become 0.34 minus 0.03 into 0.1. is it clear class? now अगर हम इसको सॉल्व करें so ये हो गया 0.34 minus 0.003
is equal to 0.337 volt is the answer. क्लास समझ आया? बहुत ही सिंपल था ये, इसमें कुछ नहीं करा था मैंने. आई थिंक इट वुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. मैं एक और एग्जाम्पल लेके इसके बताता हूँ. अब हमने यहाँ पर कॉपर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, बट अगर हम कोई ऐसा सोल्यूशन लेते हैं, ऐसा इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका सोल्यूशन जो है कॉपर सल्फेट का इट इज़ 0.8, मतलब 0.8 है, हमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया. नाउ वी आर अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ नर्स्ट इक्वेशन और ये सारी चीज़ें वैल्यू पुट करके वी आर गेटिंग व्हाट at the concentration of 0.8 m the electrode potential would be 0.337 volt. is it clear class? अब एक इससे ही रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल में रहता हूँ. ये लिसन क्लास, दीज न्यूमेरिकल्स, दीज थिंग्स आर रियली रियली वेरी वेरी एसेंशियल. आर यू गेटिंग मी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. यही सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, सब कुछ इसी पे बेस्ड होता है, सारे कंसेप्ट इसी पे हैं और यही स्टूडेंट्स को ज़्यादातर समझ नहीं आता. तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली अच्छे से समझ लो. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ये समझ आ गया ना तो इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में कुछ नहीं बचा फिर. नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल लेता हूँ. ओके, सो लिसन क्लास, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट. ये जितने भी दो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ ये किसी ना किसी पर्पज से करा रहा हूँ. इसके बाद में एक और कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ पूरे सेल का. अभी हम सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर रहे हैं. आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड, आई मीन द ई सेल, when they will be combined together to form a particular cell. Okay, so now listen. So next question is calculate E again electrode potential when silver electrode, it is a silver electrode, पहले में था copper, is dipped in 10 to the power minus 4 m molarity is given solution of silver nitrate and the standard electrode potential of silver is given. Okay, is it clear? Again same cheese, we'll have to apply the same formula. E is equal to E naught standard electrode potential minus 0.06 divided by n log concentration of product divided by concentration of reactant. अगेन n की वैल्यू और इन की वैल्यू हमें इक्वेशन से पता लगेगी. इक्वेशन बनाता है. अगेन आई एम टेलिंग यू क्लास, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो या इट इज electrode potential, we'll have to consider the reductional potential. So we'll have to write the equation. This is silver. It will take how many of electrons? Obviously one electron to become silver solid. Is it clear class? Now कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए? 1. So n की वैल्यू क्या हुई? The value of n is 1. Okay, now we'll have to put everything. E stand electrode potential is equal to, वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ पे. It is given standard electrode potential, it is 0.8 minus 0.06 divided by n is equal to 1 log, again product the concentration is silver solid divided by reactant is silver concentration, I mean ion का concentration. Okay, now E is equal to 0.8 minus 0.06 log silver is solid, ये जो हमारा प्रोडक्ट है इट इज सॉलिड, अगेन कॉन्सेंट्रेशन वुड बी 1 divided by silver concentration is given in the question, it is 10 to the power minus 4, so we'll have to write here 10 to the power minus 4. Okay, so E is equal to 0.8 minus 0.06 log, क्लास ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10 to the power 4 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगी इसकी पावर. आर यू गेटिंग मी? ये हम यहाँ निकाल लेते हैं. log 10 to the power 4 means 4 log 10 and we know 4 value of log 10 is 1, so the value would be 4. Are you getting me? Now इस 4 को हम यहाँ रखते हैं. So E electrode potential would be 0.8 minus 0.06 into 4, so it will become 0.8 minus 0.24, इसकी मल्टीप्लाई कर ली. Okay, and E will become to 0.56 volt. Are you getting me class? So electrode potential of the silver, it will come out to be
0.56 वोल्ट। आर यू गेटिंग मी? दो न्यूमेरिकल मैंने दिखा दिए, दोनों बिल्कुल सिंपल हैं, बहुत ही और बिल्कुल इजी हैं और सेम है। अब मैं बिल्कुल इसी टाइप के, अब मैं क्या करता हूँ, एक न्यूमेरिकल और लेता हूँ। अभी वी हैव जस्ट टॉक्ड अबाउट द सिंगल इलेक्ट्रोड। सिंगल इलेक्ट्रोड मीन्स we were just talked about copper electrode and we have talked about what silver electrode। अब जब दोनों ही इलेक्ट्रोड्स को, एक हमारे दोनों इलेक्ट्रोड है, अगर उन दोनों को कंबाइन करके इफ वी फॉर्म अ सेल, तो कॉन्सेंट्रेशन उस पूरे तो कॉन्सेंट्रेशन का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उस पर्टिकुलर सेल का हम कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली द ई सेल हम उसका कैसे निकालेंगे, ई एम एफ ऑफ द सेल। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हम उसको डिस्कस करते हैं। लिसन क्लास, there is another numerical. They are saying calculate E cell of the cell, and the representation of the cell is given here. It is a cell. Do you remember I told you how a cell is represented? How a cell is represented? Do you remember? We already talked about. So a cell is given here. Okay. Standard electrode potential of copper is given. Standard electrode potential of silver is also given. So now in this question we'll have to find out the E cell. पहले हमने क्या किया था, एक इलेक्ट्रोड हमने सिल्वर इलेक्ट्रोड था, ये वाला सिंपल, इसका अभी इससे पहले एक न्यूमेरिकल किया है, उसका हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला, उसका हमने क्या निकाला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड इन द सिमिलर मैनर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड व्हाट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। अलग अलग इंडिविजुअल थे ये, ठीक है। अब इन दोनों को, दोनों इलेक्ट्रोड, सिल्वर इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, इन दोनों को जो है ना हमने कंबाइन कर दिया और एक सेल बना दिया। एंड नाउ दे आर आस्किंग what would be the EMF of the cell। okay, जैसे सपोज ये मैंने ले लिया एक कंटेनर, सपोज दिस इज द कॉपर इलेक्ट्रोड and this is the silver electrode, there is a solution in it, very simple thing, and we have connected them with a wire, so we are completing the cell। okay, और इन दोनों को मैंने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। सो इन दोनों को कनेक्ट करके मैंने एक बनाया, मैंने एक सेल, कंप्लीट सेल बना लिया। ओके, नाउ दे आर आस्किंग व्हाट वुड बी द EMF ऑफ द सेल वील हैव टू कैलकुलेट। आर यू गेटिंग मी? तो नाउ लिसन क्लास, एक फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इन द प्रीवियस क्लास। E cell is equal to E cathode minus E anode। आर यू गेटिंग मी? E cathode and E anode, ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ रखा है। अगर देखो मैंने जो भी पहले अभी इससे पहले जो दो न्यूमेरिकल किए हैं उसमें मैंने क्या किया है, कॉपर इलेक्ट्रोड का मैंने निकाला, क्या निकाला था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड सिल्वर इलेक्ट्रोड का भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल चुका हूँ। अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन करके एक सेल बनाया, तो उस सेल का मुझे EMF और E सेल पता करना है, एंड दिस फार्मूला इज गिविंग द E सेल और EMF ऑफ द सेल। सो यहाँ पर क्या है, E कैथोड माइनस E एनोड, ये फार्मूला है। ओके, अब यहाँ पर लिसन, इससे पहले जो न्यूमेरिकल मैंने किया था उसमें, लिसन क्लास, इससे पहले जो न्यूमेरिकल किया था उसमें मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, इट कम्स आउट टू बी 0.56। ओके, एंड वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। देखो कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है जो मैंने न्यूमेरिकल में ली थी, यहाँ पर भी बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है। कॉन्सेंट्रेशन सिल्वर इज 10⁻⁻⁴, वही मैंने पहले ले रखी है। कॉपर कॉन्सेंट्रेशन इज 0.8, तो कॉन्सेंट्रेशन वही है जो मैंने पहले कैलकुलेट की थी, दोनों में सेम है। आर यू गेटिंग मी? तो एक तरीका तो ये है हमारा कि मैंने इंडिविजुअल दोनों ही सेल के इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए, जो हमने अभी कैलकुलेट कर चुके हैं इससे पहले। ओके, तो एक कंडीशन तो ये है, हमने दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किए इंडिविजुअली, और इनको हमने यहाँ पे कैथोड माइनस एनोड में रखकर ई सेल निकाल लिया। तो अभी हम निकाल चुके हैं, तो अभी एक इस तरीके से भी करके देख लेते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। नाउ यू जस्ट लेट मी नो क्लास, this is the representation of the cell, obviously on the right side of the cell, this is the right of side of cell, it is what, this is cathode, on the right side there is the cathode, on the left side there is anode। Are you getting me?
ये हमें याद करना था, ये हमारा कैथोड है एंड दिस इज द एनोड। नाउ लिसन, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना आया? कैथोड मतलब सिल्वर वाला कैथोड है, और यहाँ पर कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। सो कैथोड का सिल्वर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने जो कैलकुलेट किया था, इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻⁻⁴, इट कम्स आउट टू बी 0.56। ओके क्लास, माइनस ये है यहाँ पर हमने पहले कैलकुलेट किया था, और माइनस एनोड, एनोड इज द कॉपर। सो electrode potential of copper we have already calculated when the concentration is 0.8. okay, it is 0.337. okay, और जब हम इन दोनों को माइनस करते हैं, so it comes out to be 0.223 volt. Are you getting me class? ये हमारा ई सेल आ गया, इस पूरे का मैंने निकाल दिया। तो क्लास एक मेथड तो वो हुआ जो मैंने किया, लेकिन वो बहुत लेंदी है। देखो मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दिस, अदर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज दिस। ओके, सिल्वर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सिल्वर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, हमने इन दोनों ही इलेक्ट्रोड का इंडिविजुअल इन कॉन्सेंट्रेशन पे, जो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन है, इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे इनका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, जो हमने अभी प्रीवियस न्यूमेरिकल्स में करा है। तो यहाँ पर हमारा सिल्वर का आया था और कॉपर का आया था, और हमने इस फॉर्मूले में ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड में पुट किया और वैल्यू निकाली, हो गया। सो इससे हमारा ई सेल निकल गया। नाउ द क्लास, द क्वेश्चन इज, इट इज़ टू लेंथी टू डू। ओके, ये पहले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, फिर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें, फिर इस फॉर्मूले में उन दोनों की वैल्यू पुट करें, फिर ई सेल निकालें, इन दोनों, इस दोनों को मिलाकर जो सेल बनाए। सो इट इज़ क्वाइट लेंदी। तो नर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से अगर हम इन दोनों को, इन दोनों ही इलेक्ट्रोड की एक बैलेंस्ड इक्वेशन ले लें, आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग, एक बैलेंस इक्वेशन ले लेते हैं। सो व्हाट वील हैव टू डू, हमें एक शॉर्टकट निकालना है, वही नर्स्ट इक्वेशन फॉलो करेंगे हम। उन नर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक बैलेंस इक्वेशन ले लेंगे। बैलेंस इक्वेशन से देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, और बैलेंस इक्वेशन से हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। देखो कैसे करते हैं। लिसन, वी नो द फॉर्मूला ऑफ नर्स्ट इक्वेशन इज सेम, E इज इक्वल टू ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, ओके क्लास, माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई एन log concentration of product divided by concentration of reactant. It is same class, is it okay? Are you getting me? The formula is same. Now अब हम क्या करते हैं, इसको कैसे करेंगे, देखो। The cell is consisting of two electrodes. Okay, अब यहाँ देखो एनोड की साइड में क्या है, on the left side there is anode, on the right side there is cathode. Anode, at anode what takes place, do you remember? At anode oxidation takes place, at cathode reduction is taking place. So anode पर क्या है, कॉपर है, तो कॉपर का क्या होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन होगा। जब ये दोनों सेल की कंडीशन में आ गए ना, तो यहाँ पर कैथोड पर, ये सेल के रिप्रेजेंटेशन में देखेंगे, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। सो हियर there would be the oxidation of copper. Are you getting me? Now listen, oxidation कैसे होगा, it is copper, it will lose 2 electrons to become 2 plus, copper 2 plus, and 2 electron were lost. एक इलेक्ट्रोड की ये इक्वेशन हुई, I mean एक जो हमारा इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है। Are you getting me? जब सेल की कंडीशन में इस पर क्या हो रहा है। Now अब इसकी बात करते हैं, because it is present at cathode, it means the reduction would takes place. Okay, सिल्वर का रिडक्शन देखते हैं, सिल्वर इज सिल्वर प्लस, it will take 1 electron to become silver solid. Are you getting me? So दोनों ही इलेक्ट्रोड के, एक एनोड है एक कैथोड है, दोनों के मैंने रिएक्शन यहाँ लिखे। Are you getting me? और दोनों के मैंने यहाँ पे रिएक्शन, ये हो रहा है हमारा एनोड पर, एंड दिस इज टेकिंग प्लेस एट कैथोड। ओके, अब हम इन दोनों को, ये जो इनकी बैलेंस इक्वेशन मैंने बताया ना, बैलेंस इक्वेशन लेंगे। अब बैलेंस इक्वेशन इनकी हो नहीं सकती, बिकॉज वील हैव टू कट द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ से 2 है ऊपर इलेक्ट्रॉन के, तो नीचे से हम पूरे से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट बिकम्स 2, देन 2 इलेक्ट्रॉन, देन 2 सिल्वर। नाउ बोथ द इलेक्ट्रॉन्स, आई मीन 2 इलेक्ट्रॉन्स वुड बी कट आउट।
So the balanced equation would be copper plus 2 silver iron plus copper 2 plus 2 Ag, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। ओके क्लास, कोई प्रॉब्लम? अब देखो क्या करना है हमें। यहाँ पर हमें एक निकालना है, ई नॉट सेल भी निकालना है इसमें। तो एक तो हमारी ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब मैं यहाँ रखता हूँ इसको, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई क्लास। देखो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके हम 2 इलेक्ट्रॉन्स, जो ओवरऑल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उन्हीं को हम लेते हैं। ऐसे नहीं कि सिल्वर वाज टेकिंग ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन टेक n इज इक्वल टू 1। नो, यहाँ पे कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इट इज 2। सो वील हैव टू द वैल्यू, we'll have to take the value of n as 2. Is it okay class? 2 हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब यहाँ पे लगाया मैंने log concentration of product divided by concentration of reactant. Now listen class, ये हमारा प्रोडक्ट है बैलेंस इक्वेशन का। ओके, सो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा कॉपर प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, एंड यहाँ हमें लिखना पड़ेगा Ag2। मैं एक्चुअली इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, देन इट वुड बी क्लियर। सो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइडेड बाई 2 लॉग। नाउ इसको कैसे लिखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट, कॉपर 2 प्लस, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर इसकी पावर 2। क्यों लगाते हैं पावर 2, क्यों लगा रहा हूँ, क्यों ऐसे लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा इसके बाद। डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिल्वर प्लस, और इसकी भी पावर 2। ओके क्लास, यहाँ तक समझ आया? अब मैं नेक्स्ट करता हूँ आगे इससे। लिसन क्लास, दिस इज द इक्वेशन जो अभी हमने कैलकुलेट की, जो इक्वेशन हमने बनाई थी बैलेंस इक्वेशन, दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, एंड वी हैव राइट हियर व्हाट वी हैव रिटन हियर, लॉग concentration of product divided by concentration of reactant. So this is the concentration of, it is product, and this is the reactant of balance equation. अब ये मैंने कैसे लिया, देखो ये जो लॉग के बाद होता है ना, concentration of product and concentration of reactant, इसको हम कैसे लेते हैं, इसको लिखते हैं, do you remember in 11th class we talked about equilibrium constant। अब मान लो ये एक हमारा पूरा एक बैलेंस इक्वेशन है, मुझे इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेना है। ये एक्चुअली बिल्कुल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल होता है, लॉग के जो होता है ना पूरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट इज जस्ट सिमिलर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मान लो मुझे इस पूरे सेल का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, सो कैसे लिखना होता है हमें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिखते हैं उसमें भी, कॉपर 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन, एंड ये सिल्वर के 2 है ना, तो 2 ऊपर पहुंच जाएंगे, इट विल बिकम सिल्वर, इसकी पावर बन जाएगी 2, डिवाइडेड बाय सिल्वर प्लस, इसके भी 2 हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो ये भी ऊपर पहुंच जाएगी, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉपर। डू यू रिमेंबर क्लास, ऐसे ही बिल्कुल हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे इन 11th क्लास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिल्कुल ऐसे ही निकलते थे। नाउ लिसन क्लास, इन डिफरेंट बुक्स सो मैनी थिंग्स आर गिवन। तुम्हें किसी बुक पे कहीं नहीं जाना है, तुम्हें हमेशा एक चीज़, यू विल हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, यहाँ पे लॉग के बाद का जो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे हम बैलेंस सेल का, वो हमेशा हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का ही लिखेंगे वैल्यू। आर यू गेटिंग मी? जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते थे वैसे ही हमें कैलकुलेट करना है, ये बिल्कुल ध्यान में डाल लो, इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट जैसी ही हमें वैल्यू निकालनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। किसी भी बुक में कुछ भी दे रखा है डजंट मैटर, कहीं में दे रखा है, यहाँ पे ऐसे दे रखा होता है ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन डिवाइड बाय रिडक्शन, कुछ याद नहीं करना, सिर्फ यही फॉलो करना है तुम्हें। ये फॉलो करोगे तभी तुम्हारे आंसर वुड कम आउट टू बी करेक्ट। आर यू गेटिंग मी? सो इस तरीके से जैसे बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। सो नाउ लिसन,
ये समझ आ गया, ये लॉग के बाद ये क्यों आया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसा आया। नाउ क्लास, अब हमें यहाँ पर सारी चीज़ें पता लग गई, लेकिन हमें ई नॉट सेल नहीं पता है अभी। ई नॉट सेल कहाँ से पता करें? ई नॉट सेल बहुत सिंपल है। अगर हम पीछे देखें वैल्यूज़, देखो क्लास, यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सिल्वर, दोनों के दे रखे हैं हमें। तो अगर हम निकालें इनका ई नॉट सेल, अगर निकालेंगे तो ई नॉट सेल का क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ कर देता हूँ मैं नीचे, देखो यहाँ कर देता हूँ। ई नॉट सेल इज इक्वल टू वॉट, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आर यू गेटिंग मी क्लास? दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब हमने यहाँ पर ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। कैथोड क्या है? Cathode is silver. Okay, because it is present on, so many times I have told you, because it is present on the right of the cell. ये cell representation है, it is present on the right, so it is cathode. On the left it is anode. Cathode क्या है हमारा? Silver. तो we'll have to write here E cathode means standard electrode potential of silver. So it is given silver 0.8. Are you getting me? हमने यहाँ लगाया 0.8 of silver. Okay, anode is what? Anode is a copper. Anode means जहाँ पे oxidation हो रहा है, so copper is anode. So copper का यहाँ पे E anode means we'll have to write here the standard electrode potential of copper. So copper का कितना given है question में? It is 0.34. So minus 0.34 volt. So E cell कितना आया अगर इसको माइनस करें दोनों को? So it comes out to be E cell is equal to, it comes out to be what? बताओ क्लास। सो क्लास इट्स माइनस करने के बाद हमें मिला, इट कम्स आउट टू बी 0.46 वोल्ट। इज इट क्लियर क्लास? इतना आया। तो ये जो हमारा ई नॉट सेल आया है उसको हम किस में रख देते हैं? हम उसमें रख देते हैं जो हमारा फॉर्मूला भी चल रहा है, लास्ट इक्वेशन में रखते हैं और हमें वैल्यू निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं वैल्यूज। नाउ लिसन क्लास, ई नॉट सेल हमें पता लग गया, ये हमने सारा पता कर लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी आ गई हैं, ये हमने यहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का निकाल लिया। ई नॉट सेल कितना आया है हमारा? ई सेल इज इक्वल टू कितना आया था अभी हमने निकाला था? 0.46 माइनस, इसको अगर हम डिवाइड करें इट कम्स आउट टू बी 0.03 लॉग। अब देखो ये कॉपर कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि आयंस में है तो इसकी तो हम लिखेंगे कॉपर कॉन्सेंट्रेशन, और सिल्वर जो है यहाँ पे क्योंकि सॉलिड की फॉर्म में है, वेदर इट इज़ हैविंग 2 और मल्टीप्लाई कितनी भी पावर में है, सो वील हैव टू राइट हियर 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सिल्वर आयन की फॉर्म में है, सो वील हैव टू राइट हियर सिल्वर और इसकी पावर 2 दे रखी है। यहाँ पर कॉपर इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, सो इट मीन्स अगेन 1। एंड इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? देखते हैं क्वेश्चन में इनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है। सो कॉन्सेंट्रेशन कॉपर की दी हुई है 0.8 एंड सिल्वर की दी हुई है 10⁻⁻⁴। यहाँ रखते हैं वैल्यूज। लेसन ये दे रखी है कॉपर प्लस की दे रखी है 0.8 कॉन्सेंट्रेशन एंड सिल्वर की दे रखी है it is 10⁻⁻⁴ m. ये concentration is given in the question, so we'll have to put the values only. So E cell is equal to 0.46 minus 0.03 log कॉपर की वैल्यू है 0.8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सिल्वर की जो पावर दी हुई है ना, सिल्वर का जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है उस पर पावर है 2, सो वील हैव टू राइट डाउन 10⁻⁻⁴ to the power 2. So E cell is equal to 0.46 minus 0.03। अब इस पूरे की अगर मैं लॉग की वैल्यू यहाँ निकाल लेता हूँ, देखो ये है हमारा लॉग 0.8 डिवाइड बाई 10⁻, इसकी भी अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये -8 हो जाएगा, -8 ऊपर जाएगा, सो इट विल बिकम व्हाट? लॉग 0.8 into 10⁸, ये पॉइंट यहाँ से हटाओ, सो इट विल बिकम व्हाट?
log 8 into 10 to the power 7. Are you getting me? इसको ओपन कर लो. It becomes log 8 plus 7 log 10. I think it would be clear to all of you. log 8 की वैल्यू होती है 0.977 रहेगा और log 10 की वैल्यू होती है 1. सो तो पूरे log की जो वैल्यू है, इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है यहाँ पर, इट कम्स आउट टू बी ये 7 इंटू 1, सो इट विल बी 7.9. इज इट ओके क्लास? देख लेना इसको अच्छे से. मैंने यहाँ कर दिया 7.9 आई, तो ये इस पूरे को रिप्लेस करके वी कैन राइट हियर व्हाट 7.9 क्लास. सो 0.46 माइनस इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर. ओके तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं सो इट कम्स आउट टू बी 0.237 और ये निकालते हैं तो आंसर आएगा 0.223 वोल्ट. लिसन क्लास, ये मेथड आसान है. ओके चाहे मैं इससे मेथड से आंसर निकालूं, मतलब मैंने इन दोनों की बैलेंस इक्वेशन बनाई. यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन को यहाँ इस लास्ट इक्वेशन में मैंने पुट किया है. इनके कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी गिवन थे. यहीं से मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले, जो एन की वैल्यू यहाँ पे पुट की थी. ई नॉट सेल बहुत सिंपल है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, वहाँ से वो निकाला और सिंपली इसको कर लिया. ये बहुत सिंपल है, इतने से पोर्शन में ये आ गया. लेकिन अगर जैसे मैंने ओल्ड मेथड जो तुम्हें बताया ना कि पहले मैं कॉपर इलेक्ट्रोड का निकालूं, ओके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फिर सिल्वर इलेक्ट्रोड का निकालूं, तो निकालते निकालते बहुत टाइम हो जाएगा. उसे निकालने में ये एक सिंपल शॉर्ट है, इनको मर्ज करके बैलेंस इक्वेशन निकालो. बैलेंस इक्वेशन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, यहाँ रख देना. फिर ये जो हमारा लॉग के बाद जो पूरा टर्म है, इसको हम कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसे हम निकालते थे 11th क्लास में, बिल्कुल वैसे ही निकाल के यहाँ रख दिया है, कुछ और नहीं देखना है. ई नॉट सेल इजीली निकाल लेते हैं. इट इज अगेन ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है. सिंपली हमने इसको रखा और कैथोड की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन पेपर में, एनोड की भी. इन दोनों को रख के हमने ई नॉट सेल निकाल दिया. ई नॉट सेल आ गया और सारी वैल्यूज पुट करके इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट. लिसन क्लास, दिस टॉपिक इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. यहीं से क्वेश्चंस आते हैं. मैं और बहुत सारे इसके क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखो, जितने कर सकते हो मैक्सिमम से मैक्सिमम. सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर ये समझ आ गया तो एवरीथिंग इज़ क्लियर. ओके so I'll see you in the next video, and if you like the video please press the like button. Okay, I'll see you in the next video. Have a good day ahead. Goodbye.